Can you see my screen, everyone? Yes, sir. ठीक है. अब guys, let's suppose. Okay. अब guys, इसमें ना एक बात है. Now let's suppose, guys, if we upload our files. Clear? If we upload our files, guys. Let me just share. Okay. Let's make, guys, create bucket. And guys, bucket will be, let's say, Rajkumar of Dholakpur. ACL, guys, enable, disable, guys, public access, guys. Yes, bucket versioning, guys. Bucket versioning, guys, means versioning is a kind of tech, guys, way if I want to, guys, keep multiple variants of an object in the same bucket. Clear, everyone? Let's suppose, guys, I have a bucket. ये मेरी bucket है, guys. In this bucket, guys, I am, guys, uploading file 1. अब guys, जो file 1 में है, this thing, guys, let's suppose ये file 1 में लिखा हुआ है hello. Clear, everyone, or not? In this file 1, guys, I have written hello, guys. Now, guys, in the same file, I remove, guys, hello, and instead of that hello, I write hi. अब guys, tell me, if I upload the file 1 again in my bucket, तो guys क्या लिखाएगा उस file 1 के अंदर? What it will be written there? Hi. Hi. अब what will happen to the previous version? जो previous version था, in that hello, will it be there or not? No, maybe. No, basically, right? नहीं होगा वहां पे. But if we enable bucket versioning, then it will keep that version as well. Okay, let's see, guys, practically. पहले हम एक disable करते हैं bucket versioning. And now, guys, I will upload a file. Add file. In this one, guys, let me just, let's make a file randomly. Okay, now let's say, guys, I have, guys, here photo. Clear, everyone, or not? Photo नहीं है, कुछ और लेते हैं. अगर हम एपीके अपलोड करना चाहेंगे वो भी हो जाएगी क्या? APK फाइल, अरे एवरी फाइल, कोई भी फाइल. So, guys, I have a file, guys, in which, guys, I have written hi. ठीक है, तो guys मैं upload करता हूँ random file, random.txt. In this file, guys, I have written hi and click on upload here. ठीक है, ये upload हो गई. Now, guys, if I just see here the objects, let's see, guys, the object here. Object देखते हैं and click on open here. Can you see here, guys? Content क्या है? Hi. Sir, hi. Right, everyone? Now, guys, if I go and try to upload the random.txt again, okay, add file, but this time इसके अंदर जो content होगा, the content in this file, it will be hello. It will not be hi. So, guys, let's upload. Click on open. Now, guys, see here.
Hello, Yes. आ गया? So guys, what happened to the previous file? So guys, can you see here versions? Right now, there is no version in there. Okay, कोई versioning नहीं हो रही. To enable versioning, we need to enable bucket versioning. Bucket versioning enable होगी, तभी versions बन पाएंगे. कोई doubt, कोई query? No. तो एक बार bucket versioning enable करते हैं. And let's upload the same file again and again. Upload. आपने आपने 2 फाइल अपलोड की। एक फाइल अपलोड करी है मैंने. नहीं पहले हाई की करी थी, दोबारा हमने हेलो की करी। आप बात समझे मैं कर क्या रहा था उस वक्त? नहीं यही चीज समझ में नहीं आई। मैंने सेम फाइल में पहले लिखा हाय, ठीक है, एंड उसी फाइल के अंदर मैंने लिखा हेलो. अब इन द वे दो अलग अलग फाइल्स हैं, है ना? हाय एंड हेलो की अलग अलग फाइल्स हैं. बट अगर आप बकेट वर्जनिंग इनेबल नहीं करते, इट विल नॉट शो ऑल द वर्जन्स तो ऑफ सर द फाइल. जब ये फाइल अपलोड कर रहे हो वो रिप्लेस कर दे रहा है क्या फाइल को? यस, ओवरराइट कर रहा है. इसे कहते हैं ओवरराइट. मगर हमने तो ये क्लाउड पे अपलोड करी है ना, हाँ जी. वहां से वो फैच करेगा क्या उस फाइल को दोबारा जब हम उसे Fetch चेंज कर. करेंगे तो? मैं कुछ समझा नहीं. ये हमने मान लो हमने एक टेक्स्ट फाइल ली कोई भी, आपने जैसे रैंडम डॉट टेक्स्ट ली, वो हम्म, हमारे कंप्यूटर में, ठीक है, ठीक आपने है, उस कोई एक फाइल आपने अपलोड कर दी क्लाउड ठीक पर, है, ये भी। अब वो ठीक आज है. जब मान लो जो हमारे कंप्यूटर में फाइल है उसमें हम चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक वहां रैंडम क्लाउड पे हो जाएगी चेंज? नहीं, वो कैसे हो सकती है? तो फिर आपने फिर ये समझे नहीं मैं। गाइस, तो फिर ये हाँ चेंज कैसे हुआ फिर? भाई, चेंज नहीं हुआ. मैंने वापस अपना दोबारा से. गाइस, किसी को समझ में नहीं आया बताओ? सबको समझ में आया? यस पीयूष. यस. पीयूष समझ में आया? नहीं सर। ठीक. तब क्या, अब हाथ खड़े हो रहे, तब तो कुछ बोलते नहीं है सारे. सर समझ में आया। इसमें क्या? ये हो रहा है कि सेम तो यस, फाइल नेम है और कंटेंट अलग है। यस. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फाइल है ढोलकपुर के नाम से. कोई दिक्कत? ठीक है. इस ढोलकपुर में लिखा है मैंने भीम. आई हैव रिटन भीम हेयर. कोई डाउट? एंड इसको मैंने अपलोड कर दिया S3 बकेट में. कोई इशू? तो इन S3 bucket I have dholakpur.txt. Any doubt? नो सर। अब मैंने यहाँ से dholakpur.txt से भीम की जगह लिख दिया कालिया, एंड आई हैव अपलोडेड देयर ऑन माय S3 bucket अगेन. S3 में क्या दो फाइल बनेंगी सेम नाम से? नहीं, रिप्लेस करें. रिप्लेस हो जाएगी ना. दैट मीन्स नाउ ढोलकपुर txt के अंदर भीम नहीं है, उसमें क्या है? कालिया. कालिया. कालिया। ये तब होता है, इट हैपेंस व्हेन जब बकेट वर्जनिंग डिसेबल होती है. कोई दिक्कत? जब आप इनेबल करोगे तो हर उसका वर्जन होगा. फॉर एग्जाम्पल भीम का भी वर्जन होगा, वर्जन 1, देन ढोलकपुर.txt कालिया. दिस इज वर्जन 2. कोई दिक्कत? नो सर, ये जब अनेबल करेंगे तब रहेगा ना? यस. ओके। समझ में आया समीर भाई? जब मतलब हम जो भी सेम नेम की फाइल लेंगे उसे रिप्लेस कर देगा अगर वर्जन कंट्रोल अनेबल हुआ तो? आप अभी भी नहीं समझे? कौन समझाएगा भाई समीर को, बताओ? ये अपेंड हो रहा है ना एक्चुअली. अपेंड नहीं कहते इसको, इसे हम कहते हैं ओवरराइट. अपेंड मतलब कि उसमें ओवरराइट. ऐड करना. अच्छा, ओके. अपेंड मीन्स उसमें ऐड हो जाना. हम तो ऐड तो कुछ कर ही नहीं रहे ना, उसमें तो ओवरराइट हो रहा है. ठीक है. किसको समझ में नहीं आया? आ गया सर. आ गया सर.
Now who will explain to Samir? समीर को अभी भी नहीं आया. मैं करता हूँ सर. रोशन समझ में नहीं आया रोशन? No Rajan, you are not audible buddy. नहीं वो राजन कुछ बोल रहा है. अच्छा. हाँ इसलिए उसको नो बोला. Rajan, you want to say something buddy? No? Yes, who will explain to Samir? Sir, if versioning does have any limit, Which limit? versions, No. You can go as many as you can. Two files will be formed when enabled. No, file will be one, but it will have two versions. कौन समझाएगा? मैं समझाता हूँ सर. उदय जी जाइए. जैसे कि हम कोई फाइल अपलोड करते हैं, पहले हमने अपलोड करा ढोलकपुर.txt के नाम से. उसमें हमने पहले भीम लिखा था. जब ये फाइल अपलोड हो गया, हमने फिर से एक फाइल अपलोड करा, उसको एडिट करके भीम के जगह हमने कालिया लिखा. जब हम वो फाइल अपलोड करते हैं तो ये फाइल सेम फाइल को रिप्लेस करके ये कालिया वाला फाइल को अपलोड कर देता है उसी जगह पे. और ये तब होता है जब बकेट वर्जनिंग डिसेबल्ड होता है. फिर जब हम बकेट वर्जनिंग इनेबल करते हैं तो ये ढोलकपुर वाला फाइल में जब हम भीम लिखते हैं एंड उसके बाद अगेन हम जब कालिया वाला फाइल अपलोड करते हैं सेम नाम से ढोलकपुर.txt, ये उसको रिप्लेस तो कर देता है, बट इन जो वर्जन वाला सेक्शन है वहां पे इसका रिकॉर्ड रखता है कि हमने पिछले वाले फाइल में क्या अपडेट वो करा था और अगले वाले फाइल में क्या अपडेट करा था. अद्भुत, बढ़िया. Any doubt, any queries? क्लियर है? सर ये तो नहीं, ये तो क्लियर है, मगर हम मान लीजिए एक बकेट में हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी तो रख सकते हैं ना. बिल्कुल रख सकते हो. तो ये दोबारा मतलब एक फाइल के दोनों, मतलब जो भी एक फाइल का नेम है सेम, दोबारा उसमें डबल नहीं हो सकता? भाई उन्होंने अभी बोला उदय ने कि फाइल सेम रहेगी, उसके दो वर्जन्स रहेंगे. ठीक है. Let me just show you directly. तो आफ्टर सेकेंड वर्जन हम लोग कुछ और ऐड करेंगे तो इट विल बी वर्जन 3 Correct. विद द सेम नेम. Correct. For example, right now if I upload here, ठीक है. Now can you see here random.txt? फाइल तो एक ही है, but if I select this one, go to versions, क्या इसके दो वर्जन्स हैं? नहीं है. यस. क्लियर एवरीवन? के साथ भी सेम होगा ऋषभ. एक्सेल में अगर डेटा अपडेट करेंगे हम लोग और डेटा अपलोड करेंगे तो? मैडम मुझे एक्सेल का बिल्कुल आइडिया नहीं है कुछ भी. क्योंकि मैंने सीखा था, मैं भूल गया. अच्छा, बिकॉज डेटा के फॉर्म में तो कुछ भी हो सकता है. एक्सेल भी अपलोड कर सकते हैं ना हम. एक्सेल फाइल कह रहे हो या एक्सेल एक्सेल सॉफ्टवेयर? फाइल, हाँ एक्सेल फाइल अगर हम लोग अपलोड करते हैं उसमें सपोज कोई डेटा है, ठीक है, और लेट सपोज हमने उस एक्सेल फाइल में कोई वो डेटा में हमें लेट सपोज यूजर का कोई डेटा और उसमें हमें वापस से कोई डेटा ऐड करना है, तो हम ऐड करेंगे तो फिर दोबारा डबल फाइल ऐड होगा उसमें. आई मीन दो फाइल बन फॉर जाएगा. एग्जाम्पल आप कुछ भी अपडेट करके अपलोड करोगे, वहां पे एक नया वर्जन बनेगा. सिंपल सीधी बात. क्लियर एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल अभी राइट नाउ मैं भी चेक करता हूँ random.txt को, तो इसमें क्या आ रहा है? हेलो. ठीक है. अब मैं दोबारा से इस फाइल को अपलोड करूंगा, बट उस फाइल के अंदर होगा फाइल लिखा हुआ होगा. क्लियर? तो लेट मी जस्ट अपलोड. राइट, जस्ट लाइक इट्स क्रिएटिंग वर्जन, और कुछ भी नहीं है. यहाँ सिर्फ वर्जन बन रहे हैं. अब गाइस मैंने यहाँ पे कुछ कंटेंट सेव करा है,
ठीक है, और मैं नई फाइल डाल रहा हूँ यहाँ पे random.txt, दी सेम फाइल है, वो सेम फाइल, लेकिन मैंने कुछ एडिट करा है यहाँ पे उसके अंदर। आई विल अपलोड हेयर। अब मैं यहाँ जाऊंगा, फाइल के अंदर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड कैन यू सी हियर वर्जन। अब देखो मैंने उसमें कुछ सर ये चीज एडिट करा। यस, सर ये नल क्यों आ रहा है लिखा हुआ? क्योंकि जब स्टार्ट होता है ना, जहां से बकेट वर्जनिंग स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहली फाइल जो बनती है वो नल फाइल होती है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? क्लियर। इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, मतलब कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन या कुछ स्पेसिफिक चीज के लिए इसको बनाया गया है या फिर कुछ एनीथिंग? इसके लिए तो यूज केस है, इसका तो यूज केस ही ज्यादा है, जैसे जितना ने बताया अभी। इफ वी अपलोड एक्सेल फाइल, ठीक है, हर बार वी आर चेंजिंग समथिंग इनसाइड द एक्सेल फाइल। ये थोड़ी ना कि हम अलग अलग फाइल्स बनाएंगे सेम की, नो, वी विल हैव द सेम फाइल नेम बट वी विल हैव वर्जन्स ऑफ दैट फाइल, कि हाँ इस वर्जन में ये था, इस वर्जन में ये था, ये वर्जन वाज मॉडिफाइड लास्ट टाइम, ये एवरीथिंग। कैन यू सी हियर? एंड यू कैन सी द साइज एज वेल। Correct. It will keep a record of whatever changes we have done to the same files. यस, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मुझे अपना फाइल देखनी है जो 6 महीने पहले मैंने अपलोड की थी। क्लियर एवरीवन और नॉट? तो गाइस यू कैन ट्रैक इट डाउन कि लास्ट मॉडिफाइड कब हुई थी, एंड दैट वर्जन आई कैन सी। फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन दिस अप, ये भी लेटेस्ट वर्जन है मेरा, इन दिस लेटेस्ट वर्जन आई हैव हेलो ऋषभ हियर, बट अब मैं चाहता हूं, आई वांट टू सी अ प्रीवियस वर्जन ऑफ द फाइल। guys getting it or not? Previous version. So I will go to this version and click on open, and in this version guys I have only hello. कोई दिक्कत? टीम्स ऑल्सो वर्किंग द सेम वे ना, टीम्स में भी ऐसे ही होता है, कोई भी फाइल आप अपलोड करते हो लेकिन ये वर्जन वाला चीज वहां पे नहीं होता है, वो सेम फाइल में एडिट कर देगा शेयर पॉइंट पे। हाँ, तो वो ओवरराइट कर रहा है ना। हाँ ओवरराइट कर रहा है, राइट। तो अगर हम बकेट वर्जन इनेबल नहीं करते तो S3 बकेट भी ओवरराइट करता है। कूल एवरीवन? बकेट वर्जनिंग क्लियर है? क्लियर है। ओके जी। नाउ गाइस स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। अब गाइस फॉर एग्जांपल मुझे कोई वेबसाइट होस्ट करनी है यूजिंग S3 bucket, what can I do? I will just click on enable static website hosting, click on edit and use this bucket to host a website. Acha, what is guys static website? Like a PDF page? No. जिस पे क्लिक करने पे कुछ ओपन नहीं होगा, मींस ऐसा नहीं है। गूगल का स्टैटिक वेबसाइट पता है? फॉर इंडिया, बट हाँ डायनामिक ही है वो बेसिकली, बट इट इज नॉट लाइक दैट कि कुछ ओपन नहीं होगा, वो फंक्शन पूरा करेगा। ओके, I'll tell you guys. Guys, we have, ये मेरी कंपनी की वेबसाइट है गाइस। क्लियर एवरीवन और नॉट? हेलो मूव, कैन यू सी हियर गाइस एवरीवन? ठीक है। अब गाइस अब मुझे बात बताओ, ये सीईओ है गाइस, ठीक है। पहले तो गाइस एंटोनियो था, वो चला गया, उसने नया खोल लिया अपना। नाउ गाइस इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, कि अगर आप वेबसाइट ये खोलते हो, क्या आपको सेम कंटेंट दिखता नहीं दिखता? Yes sir. क्या ये सेम पेज दिखेगा गाइस? नहीं दिखेगा? दिखेगा। दिख रहा है। Yes sir. दिख रहा है? अब गाइस ऐसा हो रहा है कि चेतना को अलग दिख रहा है, मेरे को अलग दिख रहा है, मंजीत को अलग दिख रहा है, उदय को अलग दिख रहा है पेज। नो।
नो सर। ऐसा है। नाउ गाइस, अगर मैं बात करूं amazon.com की, मुझे अलग दिखेगा ये amazon.com। आप ओपन करोगे आपको अलग दिखाएगा वो, है यस ना? सर। नितिन? होता है या ना? तो गाइस Yes, sir. नाउ टेल मी which is static, which is dynamic? ये डायनेमिक है, वो वाली स्टेटिक है। करेक्ट। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? यस सर। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? स्टैटिक और डायनामिक ये होता है। एंड इंडियन के जो ये ट्यूटोरियल्स है ना यूट्यूब वगैरह वाले, स्टैटिक वेबसाइट क्या बोलते हैं वो, कि भाई ब्लैंक पेज होता है, नॉर्मली वेबसाइट होती है जो काम नहीं करती, दे डोंट डू एनी फंक्शन। नहीं, फंक्शन पूरा हो रहा है भाई, वो स्टैटिक इसलिए है क्योंकि कोई भी खोलेगा वेबसाइट वो सेम की सेम ही रहेगी, इट विल बी एज इट इज। बट डायनामिक में क्या होता है, वी यूज एल्गोरिथम्स टू पर्सनलाइज। नेटफ्लिक्स खोलोगे आप, नेटफ्लिक्स का होम पेज खोलो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, वो सबके लिए सेम रहेगा। दैट मीन्स ये आपके लिए स्टैटिक हुआ। क्लियर हुआ नहीं हुआ गाइस? लेकिन जब आप लॉग इन करते हो, क्या वो स्टैटिक होगा डायनामिक होगा? डायनेमिक होगा। डायनेमिक। वो एज डायनेमिक। पर योर नीड्स वो चेंजेस हो जाते हैं। इंटरेस्ट। हाँ, एज इंटरेस्ट। पर योर गाइस, इसका कहते हैं हम पर्सनलाइजेशन। ओके, दैट मीन्स नेटफ्लिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन ही एक चीज है, पता है आपको किसी को? क्या? किससे? हु इज द कॉम्पिटिटर ऑफ नेटफ्लिक्स? अमेज़न प्राइम? नहीं हाँ? नहीं, सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है उसका? हॉटस्टार। तुम्हारा ध्यान कहीं और है भाई, तुम इंसान हो, तुम ये समझ नहीं पा रहे। सबसे बड़ा ये- कंपटीशन नेटफ्लिक्स का है ये- आपकी 8 घंटे की नींद। पता ही किसी को? नहीं। 8 घंटे की नींद सबसे बड़ा कंपटीशन है नेटफ्लिक्स का, और हर एप्लीकेशन का। आप सो रहे हो, वो घाटा है उनके लिए, आप जाग रहे हो तो उनके लिए फायदा है। बिकॉज इफ यू आर अवेक, यू आर यूजिंग योर मोबाइल फोन एंड दैट विल जनरेट डेटा, वो डेटा वो यूज कर पाएंगे। आप सो रहे हो, मोबाइल में कुछ, फोन में कुछ भी नहीं हो रहा, दैट मीन्स वो कुछ जनरेट नहीं कर पा रहे। गाइस समझ आ रहा नहीं आ रहा आपको? मैं तो भाई हूँ इंजीनियर, आई एम मशीन लर्निंग इंजीनियर, सो आई नो अबाउट दिस थिंग्स। लेकिन जो नॉर्मल इंसान होगा ना, वो समझ नहीं पाएगा ये चीज। गेटिंग गाइस और नॉट? यस सर। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अपने से एग्जाम्पल देता हूँ। गाइस द कंपनीज व्हिच आई एम वर्किंग गाइस राइट नाउ, द गाइस आल्सो ट्रैक डेटा। किस लिए गाइस? फॉर प्रोवाइडिंग बेटर गाइस पर्सनलाइजेशन। ठीक है, अब गाइस मैं को बात बताता हूँ। अब गाइस यूरोप में ना एक सीन है गाइस, हाउ मेनी नो अबाउट टेंडर, बम्बल वगैरह वगैरह, पता है किसी को? क्या? टेंडर, बम्बल वगैरह डेटिंग एप्लीकेशंस, हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इट? एवरीवन नोस। ठीक है, सब नहीं जानते, साकिब नहीं को नहीं नहीं, पता ये चीज सबको के पता बारे है। कोई बोलता है नहीं, लेकिन सबको पता है। साकी ने ज्यादा डाउनलोड किया था मोबाइल में। में। रोशन कह रहा है व्हाट इज दैट थिंग? रोशन, नहीं सर, मैं तो फेसबुक और You don't know इंस्टा ही about that? चलाता हूँ। टेंडर बम्बल नहीं बनाओ पता? आज टिंडर। नहीं सर, क्या होता है? भाई आज चलाना, रजिस्टर करना, राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप करना है, चेक करना है। अरे डेटिंग एप्लीकेशन है बेसिकली गाइस ना। यूरोप के थोड़े लोग थोड़े डिफिकल्ट है, पता है? ये जो गाइस आईफोन में टाइप सी आया, पता है किसी को? यस सर। एप्पल का। बट यूरोप में गाइस लॉ थोड़ा डिफरेंट है। तो यूरोप, अब देखो गाइस फॉर एग्जांपल, अगर वो स्पेसिफिक कंट्री के लिए तो गाइस फोन नहीं बनाएंगे ना, राइट एवरीवन नॉट? फॉर एग्जांपल यूरोप में अलग आईफोन बिक रहा है, हमारे यहाँ अलग आईफोन बिक रहा है। हालांकि है ऐसा है वो ग्लोबल रहता है ना। यूएस के जो, फॉर एग्जांपल यूएस के जो गाइस, कभी भी यूएस का आईफोन मत खरीदना गाइस कभी भी। यू नो व्हाई? वहां की उसमें आईफोन्स में ई सिम है। हाँ, Yes, सिम sir. का हाँ, स्लॉट चेंज। वहां पे सिम का कोई स्लॉट नहीं है, लॉट नहीं ठीक है? एंड यहाँ पे गाइस अपन को प्रैक्टिकल सिम इज मच गुड गाइस एज कंपेयर टू ई सिम, इफ यू नो अबाउट इट। वहां का इनका इंफ्रा अच्छा है। तो ऐसा नहीं है गाइस, अगर यूएस का सामान इतना सही भी नहीं होता,
अच्छा ये पता है किसी को गाइस, यूएस में बेस्ट बाय कॉस्को होते हैं, एंड गाइस इफ यू डोंट लाइक एनीथिंग यू कैन रिटर्न इन 30 days एंड यू विल गेट फुल बैक मनी। पता है? That too on Nice. phones and all. एवरीथिंग, एवरीथिंग। गाड़ी भी ले लो आप, ये तो इतने अच्छा है, वापस कर दो। यस हर महीने चेंज कर लो। यस। अरे यहाँ पे ना कहीं एमआरपी होता है, वहां पे मैक्सिमम रिटेलिंग। यस, वहां पे एमएसआरपी Use होता it, है। return it. हाँ कोई बात नहीं गाइस, आपको बताएंगे पूरा। अच्छा नाउ गाइस आई वाज टेलिंग अबाउट दिस थिंग डेटा के बारे में, राइट? नाउ गाइस यस, फॉर एग्जांपल गाइस, अपन कंपनी गाइस आल्सो वी आर देयर इन क्रोशिया एज वेल। क्रोशिया गाइस कम्स इनटू यूरोप पार्ट। अब गाइस क्रोशिया की लड़की ने ना एक रजिस्टर किया गाइस डेटिंग एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है? तो गाइस ने 2 दिन इस्तेमाल किया एंड आफ्टर 2 days गाइस उसको अच्छा लग नहीं लगा डेटिंग के एप्लीकेशन के बारे में, उसने वापस मांग लिया। क्लियर एवरीवन? कि भाई टेंडर को उसने मेल किया कि आई वांट माय डेटा बैक, व्हाटएवर द डेटा यू हैव टेकन और यू हैव यूज्ड गिव मी बैक। क्लियर एवरीवन? तो गाइस 1 महीने के बाद उसके पास डेटा वापस आया है पेजों में। गाइस टेल मी हाउ मेनी पेजेस विल बी देयर 2 दिन में? ये एप्लीकेशन वाज यूज्ड फॉर 2 days। जो डेटा है नेम, No idea. एज, सेक्स, व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक, कितने पेज का डेटा बन सकता है भाई 2 दिन में? 100 पेज का बन सकते हैं कुछ। 1200 पेज का डेटा बना था 2 दिन के क्या अंदर। था? उसमें ये था कि लड़के को क्या पसंद है, किस कंपनी का लैपटॉप यूज करती है, उसके खानदान में कौन कौन लोग हैं, एवरीथिंग, एवरीथिंग। 1200 पेज का डेटा। अब बताओ। तो सर ये आईफोन में अभी जो आया हुआ है आस्क नॉट टू टेक डाटा समथिंग करके आता है ऑप्शन है, वो करेंगे फिर भी? हाँ हाँ, वो क्या आप एप्पल कम समझते हो? एप्पल तो उसका बड़ा बाप है। एप्पल तो जो परचेज लेते हो आप, एप्लीकेशन परचेज करते हो तो 30% यूज करता है। अभी एपिक गेम्स पता है किसी को? एपिक गेम्स के बारे में नहीं पता? हाँ, एपिक गेम्स। एपिक गेम, फोर्टनाइट पता है? एनीवन नोस फोर्टनाइट? हाँ, यस सर। तो फोर्टनाइट क्या करता है गाइस? एपिक गेम्स का, ठीक है? तो गाइस एप्पल ने ना ये चीज रूल कर रखा है, व्हेनेवर गाइस यू परचेज समथिंग इन द एप्लीकेशन, ठीक है? मैं तो गाइस आईफोन चलाता था, मैंने बंद कर दिया, मैं आई डोंट यूज आईफोन एनीमोर नाउ गाइस। उसका वो 30% लेता है। दैट इज व्हाई गाइस आईफोन की एप्लीकेशंस के परचेजिंग थोड़ी महंगी होती है। पता है किसी को? यस। कंपेयर करना एक बार एंड्रॉइड से और अपने एप्पल के उससे, कि वहां पे परचेजिंग ज्यादा क्यों होती है एप्पल के स्टोर में और एंड्रॉइड में कम क्यों होती है। साकिब क्या हो गया? बता भाई साकिब। क्या मेट्रो में करता होगा। चाहता क्या भाई? आप भी आईफोन यूज करते थे? हाँ भाई, तो मुझे पता है भाई, सब आप है कल क्यों कह रहे थे आप यूज ही नहीं करते? भाई। नहीं यूज करता है, राइट नाउ आई एम यूजिंग वीवो। वीवो का फोन यूज करता हूँ मैं। वो तो चाइनीज है ना फिर तो। चाइनीज है लेकिन मैंने उसमें ब्लॉक कर रखी चीजें सारी। आई विल टेल यू अबाउट दैट पार्ट लेटर। तो गाइस यस, सो आई वो क्या कह रहा था मैं? हाँ, एप्पल गाइस 30% अपने वहां की परचेजिंग यूज करता है। एपिक गेम्स का गाइस देखना ये वाला बात, इसमें शायद होगा एपिक गेम्स एप्पल सूकेस। यस देख रहे हो गाइस? तो एपिक गेम्स ने गाइस क्या किया था, ये गाइस थोड़ा सा ना वो होता है, केसेस होते हैं दैट यू गाइस फॉलो। तो गाइस ये हुआ क्या था, एपिक गेम्स अपने एप्लीकेशन के थ्रू परचेजिंग नहीं कराता था। वो कहता था एक नया विंडो खुलता था एपिक गेम्स का, वहां परचेजिंग हो गई तो सारा का सारा पैसा कहां चला गया? एपिक गेम्स के पास। भाई ये बात पसंद नहीं आई एप्पल को। एप्पल ने भाई केस फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट में। तो देन गाइस क्या हुआ, सारी कंपनियां इकट्ठी हो गई गाइस एप्पल के खिलाफ में कि भाई एप्पल तो ये चीज करता है, वो चीज करता है। उसके बाद गाइस एपिक गेम्स जीत गया एंड गाइस उन्होंने फीस कम कर दी। देख रहे हो गाइस, डिस्प्यूट ओवर द फीस चार्ज बाय एप्पल इन परचेजेस। पढ़ना गाइस इसके बारे में, 30% कमीशन। कूल।
नो वरीज, आगे बढ़ते हैं गाइस। मैं क्या पढ़ा रहा था? स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। सो गाइस क्लिक ऑन एनेबल दिस वन, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग। क्लियर है एवरीवन? स्टैटिक डायनामिक वेबसाइट के बारे में बात करना, कोई डाउट, कोई क्वेरी? अच्छा, गूगल डायनामिक है स्टैटिक है? गूगल स्टैटिक है ना? डायनामिक है। तो डायनामिक रहेगी। कैसे रहेगी? स्टैटिक है। स्टैटिक है, हम अगर गूगल सर वो सर्च मारें कभी सब तो कभार गूगल कुछ वही। अलग दिखता है ना सर उसका यूआई। यूट्यूब कैन बी डायनेमिक। हाँ, यूट्यूब डायनेमिक हो सकता यूट्यूब है। तो है, उसमें तो एआई यूट्यूब तो सबसे बड़ा डायनामिक ही यही है। यूट्यूब, नेटफ्लिक्स तो सारे डायनामिक ही गूगल का होम पेज स्टैटिक है सर। डायनामिक होना चाहिए गूगल। बिंग म्यूजिक गूगल है। डायनामिक है, गूगल डायनामिक है। वाई? बिकॉज गूगल इंडिया अलग खुलता है, गूगल यूएसए अलग डॉट खुलता इन। है, गूगल जापान अलग खुलता है, इन दैट वे। क्लियर एवरीवन? ठीक है। हालांकि इनसाइड इंडिया इट विल बी स्टैटिक। क्लियर एवरीवन? क्योंकि वो सबको दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत इसमें लोचा है। नाउ गाइस क्लिक ऑन एनेबल। ठीक है, होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट गाइस। नाउ गाइस सबसे पहले गाइस मैं अपनी वेबसाइट में ना राजकुमार ऑफ ढोलकपुर थोड़ा सा गाइस मैं यहाँ पे डालूंगा अपना कोड, HTML CSS JavaScript guys. So let me just upload some files here guys. अच्छा, before that guys, यहाँ के objects are not public. Clear everyone? The objects are not public. That means guys, people प्राइवेट। cannot guys basically access. Right everyone? तो guys मैं करूंगा permissions के अंदर, and then guys remove the block access here. Save changes. Confirm. Cool everyone. After that guys, ऑब्जेक्ट bucket ऑनरशिप। ownership क्या करेंगे? ACL enable करके I understand and save changes. Cool everyone. Now guys, properties here. So guys, random dot guys upload करेंगे यहाँ पे add files. तो guys एक सुंदर सी guys SST वाले guys, anyone know about meaning of SST? पता है किसी को? अरे वो सर क्या एसएसडी? Yes, SST. सोशल स्टडी। देख लो, स्टोरेज का बोल रहे क्या? SST means सस्ता सुंदर टिकाऊ. अच्छा, So guys, पहले I have a क्लास में बोल रहे website. Yes, guys, index.cs guys, here we have it. Cool everyone. And guys, just 1 second. Yes. Now guys, if I just tell you about this thing, go down. Permissions guys. In permissions guys, I will just say grant public read access, specify individual like this one, read and read. अब गाइस सबको पता है कि HTML फाइल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट. क्लियर एवरीवन? तो नहीं पता किसको बताओ? यस सर। यस यस सर। किस किसको गाइस नहीं पता? टेल मी. क्या चीज? एनीवन नोज अबाउट HTML फाइल? क्या होता है HTML फाइल? बताओ. किसी भी वेब पेज का बेसिक पेज को क्रिएट करने के लिए होती है। Yes. So that means, guys, every piece of website on this planet Earth is built on HTML file. Clear everyone? ठीक है. अब guys, मेरा guys HTML फाइल चाहिए होगा वेबसाइट होस्टिंग के लिए. तो guys, let's go to ढोलकपुर and properties. Scroll down guys. Static website hosting guys में enable करते हैं. Okay.
Now guys, specify the guys HTML file. कौन सी HTML file है? Index.html file. And guys, save changes. Clear everyone? And guys, if you go down now, everyone can access this website using this link. Now guys, tell me guys, how many of people can access this website? Guys, दिख रही है website ये? बिकॉज देखो भाई, मैं फ्रंट एंड में इतना नहीं हूँ मास्टर, पर थोड़ा बहुत अच्छी बना लेता हूँ मैं. क्लियर एवरीवन? सो गाइस, ट्राई दिस वेबसाइट. आई हैव सेंट यू इन द चैट. किस किसको गाइस समझ में आया स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग के बारे में? क्लियर है एवरीवन? हाउ यू कैन गाइस यूज S3 bucket to host a static website? कूल है? फाइल चाहिए वाली फाइल चाहिए किसको? मुझे हाँ हाँ भाई एकदम से क्या हो गया? ओके जी, सो गाइस आई एम सेंडिंग यू द GitHub repository लिंक BBQ के नाम से. Yes guys, I have sent you in the chat guys. Guys, इस रिपोजिटरी के अंदर गाइस आपके पास 3 फाइल्स होंगी, HTML, CSS और JavaScript. वो गाइस आप डाउनलोड कर लेना. क्लियर एवरीवन और नॉट? सर ये आपकी गिटहब रिपोजिटरी है? हाँ जी, विचर? हाँ जी, विचर मैं हूँ, मैं जादूगर हूँ. मैं दिखा दूँ अपने GitHub गाइस, मन करे तो फॉलो कर लेना मेरे को GitHub के ऊपर. मुझे दिखाए. तो कोरोना वाली फोटो. यस, मुझे कोविड हुआ है. ये मास्क क्यों लगा रखे हैं? भाई मैं विचर हूँ ना, क्या तो रहा हूँ, जादूगर. क्यों दिखाऊं मैं अपना फेस? क्लियर एवरीवन? पिक्चर लड़की ब्लॉकचेन पे विचर लड़कियां होती हैं? विच होती नहीं हैं? नहीं, ब्लॉकचेन बोल रहा था सर. अच्छा, ब्लॉकचेन. किसने बोला बीच में? क्या ब्लॉकचेन भाई? हाँ, ये मतलब ब्लॉकचेन में पढ़ रहा था ना, पढ़ के यार, अभी पढ़ ही रहा हूँ भाई मैं तो सॉलिडिटी के बारे में. कूल एवरीवन? यस. तो इसमें पुल रिक्वेस्ट मार सकते हैं क्या? मार लो भाई पुल रिक्वेस्ट, क्या दिक्कत है? ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था लास्ट ईयर. I was like studying about IPFS. आर्किटेक्चर था IPFS का, पता है किसी को ये? छोड़ो 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 छोड़ो. जय माता दी, जय माता दी. नो वरीज भाई. मैं भाई अनपढ़ गवार आदमी हूँ यार. मैं जो पढ़ाता हूँ तुम वो पढ़ लेते हो मेरे से. मैं पढ़ ही रहा हूँ अभी AWS, तुम्हें पढ़ाता हूँ मैं यहाँ पे. क्लियर एवरीवन? समझ में आया? कोई डाउट? ये सारी चीजें देख लेते तो हम लगते हैं कि हमें कुछ नहीं पता है. ऐसा नहीं है, बट हाँ, एज कंपेयर टू माई एज, देखो भाई मेरा इंटरेस्ट है पैसा कमाने में, तो भाई मैं कर लेता हूँ. दैट्स इट. यस, नो डाउट्स, नो क्वेरीज. आगे बढ़े. अब भाई मैं ऐसा थोड़ा इंसान हूँ जो बोलता रहूंगा आईफोन है मेरे पास, मैं गरीब हूँ. मैं ऐसा नहीं हूँ भाई. क्लियर एवरीवन और नॉट? आगे बढ़े. प्रॉपर्टीज के बारे में. बकेट वर्जनिंग क्लियर. वेबसाइट होस्टिंग क्लियर एवरीवन. रिक्वेस्टर पेज क्लियर एवरीवन. अब गाइस वी कैन गाइस ऐड अ ऑब्जेक्ट लॉक. ऑब्जेक्ट लॉक क्या होता है भाई? ऑब्जेक्ट लॉक गाइस
we store objects. Okay, guys, that means अपन guys write कर सकते हैं, read कर सकते हैं as many as time. But guys, अगर मैं चाहता हूं delete करना, ठीक है, और guys overwrite करना for fixed amount of time, clear everyone or not, तो मैं ये ऑब्जेक्ट लॉग लगा सकता हूं कि भाई ये मेरी बंदी है, कोई इसको नहीं छेड़ेगा. क्लियर एवरीवन और नॉट? फिक्स टाइम के लिए. ये नहीं भाई, इंडेफिनेटली हो सकता है, इंडेफिनेटली हो सकता है. क्लियर और नॉट? यस प्रीति सिर्फ मेरी है भाई, और किसी की नहीं है. गाइस, भाई कोई है नहीं ना किसकी गर्लफ्रेंड का नाम प्रीति हो? है यहाँ पे कोई ऐसा? साकिब अरे हंसे जा रहा है बस इमोजी में. है ही नहीं यार मेरे पास. उसके A पास, to Z साकिब के पास सब है. उसके पास तो लड़का है प्रीत नाम का. प्रीति नहीं है उसके पास. Now guys, here see here object lock. So guys, if I enable this, तो guys क्या होगा? Permanently allows objects in this bucket to be logged. Clear everyone or not? यस. ठीक है, I acknowledge and let's guys enable this one. For like governance में guys अगर मैं use करूँगा, that means guys using IAM permissions. किसको IAM याद है? यस. IAM permissions के थ्रू मैं दे सकता हूँ परमिशंस कि कौन ओवरराइड कर सकता है, कौन ओवरराइड नहीं कर सकता. बट अगर मैंने कंप्लायंस यूज कर लिया तो भाई कोई भी माइकल लाल डिलीट और ओवरराइड नहीं कर सकता, चाहे मैं क्यों ना हूं. क्लियर एवरीवन और नॉट? तो ये तो परमानेंटली कर रहा है सर. हाँ, फिक्स टाइम के लिए कैसे करेंगे? फिक्स टाइम के लिए देखो हो ना, डेज आ गए ना यहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 1 साल के लिए ऑब्जेक्ट लॉग हो जाए कंप्लायंस मोड में, ताकि कोई भी उसको ओवरराइड डिलीट ना कर पाए. जय माता दी. लेट्स रॉक. कंफर्म. एनेबल कंप्लायंस मोड. अब गाइस कुछ अपलोड करके देखते हैं. लेट्स अपलोड. क्या अपलोड करें गाइस? लेट्स अपलोड माय पिक्चर गाइस. नाउ गाइस अपलोड कर दिया मैंने ये. क्लियर एवरीवन? परफेक्ट. यहाँ आ गया है rips.jpg. अब गाइस मैं उसको डिलीट करूंगा. एंड गाइस डिलीट करने के बाद डिलीट करें, डिलीट ऑब्जेक्ट. ओ ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया. बट गाइस इफ यू गो एंड देयर एंड क्लिक ऑन, कैन यू सी हियर शो वर्जन्स हियर? यस. कैन यू सी हियर गाइस? उसने बोला कि यहाँ पर डिलीट किसी ने कर दिया है, बट एक्चुअली में फाइल इज स्टिल देयर. कैन यू सी हियर? ये फाइल इज स्टिल देयर. अगर मैं इसको डिलीट करता हूं, अब देखना मोदी जी भगते हुए आएंगे, बोलेंगे ना बेटा ना. कैन यू सी हियर? फेल टू डिलीट द ऑब्जेक्ट, एक्सेस डिनाइड. अगले 1 साल तक आई कैन नॉट डिलीट दिस फाइल. क्लियर एवरीवन और नॉट? 1 साल तक? यस. मैंने लिखा है ना इन कंप्लायंस में, गो टू प्रॉपर्टीज एंड इफ यू जस्ट गो हियर, कैन यू सी हियर? ऑब्जेक्ट लॉक, हाँ 1 ईयर. डिफॉल्ट रिटेंशन 1 ईयर. एंड कंप्लायंस मोड मींस कोई कोई नहीं भी कर नहीं कर सकता. सेकंड थिंग मोर, अगर मैं ऑब्जेक्ट लॉक ओपन करता हूं तो मुझे बकेट वर्जनिंग इनेबल करनी ही करनी होगी. बकेट वर्जनिंग इनेबल नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट लॉक नहीं लग पाएगा. इंटरव्यू में पूछते हैं ये चीज, अगर मैं इंटरव्यू ले तो बिल्कुल पूछूंगा. क्लियर एवरीवन? क्या हम ऑब्जेक्ट लॉक इनेबल कर सकते हैं विदाउट बकेट वर्जनिंग? नहीं. So that means No. bucket versioning is should be there if I want to use object lock. कोई दिक्कत, कोई क्वेरी? मंडे को गाइस आपका S3 bucket का केस हम कंप्लीट कर देंगे विद गाइस टाइप ऑफ स्टोरेज क्लासेस, S3 ग्लेशियर वगैरह वगैरह करके, एंड हाउ वी कैन गाइस इनेबल बैकअप. ओके, एक गाइस आर्किटेक्चर बिल्ड करेंगे जिसमें हम 2 बकेट्स बनाएंगे. एक बकेट होगी मुंबई के अंदर, एक बकेट होगी सिंगापुर के अंदर. एंड ऑटोमेटिकली गाइस बकेट्स का डेटा सिंगापुर में रेप्लिकेट होता रहेगा. कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ताकि अगर मुंबई में कुछ चीज बाढ़ बाढ़ आती है तो गाइस सिंगापुर में डेटा रहेगा अपन का. एनी डाउट, एनी क्वेरीज? No. क्लियर एवरीवन? Clear. परफेक्ट. तो
कोई डाउट नहीं है गाइस, डाउट पूछ लो। अब हम कंप्लायंस